Our next distinguished speaker for the session, Mr. Surinder Bhatt. I would like to introduce you all to the speaker. Mr. Bhatt obtained his Master's in Technology, Textile Chemistry from University Institute of Chemical Technology, University of Mumbai. He was awarded Grade A on thesis titled Substitution of Acids in Textile Coloration and passed in first class with distinction in October 2003. He received Best Thesis Award instituted in UICT Mumbai for the year 2003-2004 among the various disciplines. He worked for 2 years in production at Morarji Mills, Mumbai, 5 years in cocoon marketing training in silk reeling, and 27 years in extension and training in raw silk reeling testing post-cocoon technology. He looked after entire post-cocoon activities of Jammu and Kashmir zone and neighbouring states of Punjab, HP and Haryana as Zonal Officer, PCT sector, during posting at Jammu and Kashmir, and is presently looking after the PCT sector of Uttarakhand state. His main areas of interest are development of post-cocoon sector, training and extension in silk industry, quality assessment support to DOS in cocoon marketing, amongst various others. He has presented various papers on post-cocoon technology in different workshops and seminars conducted in the states of northwestern India. Ladies and gentlemen, with a huge round of applause, please welcome our guest for the session, Mr. Surinder Bhatt. Sir, I would like to invite you on the dais to kind of take over the session. Thank you, Madam Radhika. Thank you, sir. For introducing me, Madam Makhija, Shri Vora Saab, Dr. Sardar Singh, my best friend, colleague, and we have started our career together in Bihar. So it is a coincidence or destiny that we are moving wherever he goes. I am also following him. So the NDC has also given us the opportunity for guiding you people in pre and post cocoon sector. And moreover, my participants on the other side. This is for the first time, I must confess. I think they are all faculties, what I have been told, from different colleges of Delhi University. We have been giving lectures to hundreds of farmers, hundreds of weavers. I'm not sure about Dr. Sardar Singh, whether he has given any lecture to the faculty. He must have given. But for me, it is the first time. So that way, it's a great opportunity for me. Many students have come to our workshops, to our seminars, from Jammu University, from Uttarakhand University, Devbhoomi University. But handling students is more difficult than what I feel handling you people. It's not handling, but I have to train you because you know the things. Because sometimes it's a learning experience for us also. They ask so peculiar questions and to the point questions, which has made us so, I will not say the perfect, but whatever we are today, because of those queries, we have gained experience. It's not only from the students, from our fraternity, especially the weavers, reelers, farmers, rearers, whatever the questions they put up, they are very important for this sector at least. Dr. Sardar Singh, he must have explained you everything about pre-cocoon technology. Yes, sir. And I am sure, and with authority I can say, there is no other good faculty than Dr. Sardar Singh in this northwestern region. So, huge applause to him.
I have learned so many things from him in pre-cocoon aspects, because this sector, it is all interlinked. Backward linkage, forward linkage, it's very necessary for us to know. And I congratulate Madam Seema Makhija and the authorities over here that they have kept all these disciplines in this program. What I mean by backward linkage, that is pre-cocoon. That is the process up to production of cocoons. And post-cocoon, that is the processes which are involved after cocoon formation. So, what is the cocoon then? I'll give my presentation tomorrow also, there is no problem. I can give today also. But first I want to make you understand what is cocoon. He must have told you cocoon. What is cocoon? I think there must have been many speakers. Our guru was also there on the first session, I think, Dr. Dandin. He's a stalwart of CSB. So, about cocoons you know much, but what the processes are done after cocoon. That means the cocoon is the raw material for our silk production. That's very important. So if the cocoon quality is not good, so we cannot produce the better silk, the quality silk. So for that, I thank Dr. Sardar Singh through his inputs in northwestern region. He has been there, director in charge of Pampur, looking after full northwestern India. And with his experience, I was able to get good quality cocoons. With that, as I told you, we can produce the quality silk. Suppose in a market you go, rice market. So what you will do, you will purchase the best quality of rice. Or it's better, whatever the product we are going to, चावल बनाने के लिए हमें बासमती चाहिए. We take that. So it's the same way we require the best quality of cocoons. So I thank him with his inputs. We were able to receive, and the influx of cocoons nowadays to the markets is the quality has improved substantially, which was not earlier. But that comes out of the experience. I'm telling you, I was discussing with ma'am also. It's not that by sitting in an AC cabin and just seeing the papers and all that will not do. He has worked in the field with the farmers, and I was also following him. Once there was, I quote this in every workshop or seminar because it should be why it is important. There were heavy rains, incessant rains in Himachal Pradesh. He was posted that time in Hamirpur. His teammates, they were moving around. We were in jeep. We were not knowing that what they are doing. We were passing through highway. He was with me. One person was holding the saplings and another was driving the motorcycle. And they were being distributed to the field. That is where the sericulture will be successful. They did not wait for the rain to stop. That saplings had to be planted on that very day. So that's why they were moving. That should be the dedication
because ours is a cottage based industry. हम लोग जो है गरीब तबके के लिए काम कर रहे हैं, तो जिसके पास वो हो वही हर फील्ड में सक्सेसफुल होता है. And he has got the awards. I don't know whether he has told that thing. That project model was made as a model project for the entire country. So let me give him huge hand. So he is my friend. That's one thing. But as far as the official things are concerned, he being the person from Peak Cocoon Technology, I have learned so many things from him. Then what was next? If he has produced the quality cocoons, I had to ensure that the quality of cocoons what he has prepared, that should sustain. आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट, हमने मिठाई बना ली है, लेकिन मिठाई की क्वालिटी को मेंटेन करना भी हमें आना चाहिए. जब तक बाराती ना आ जाए, जब तक वो ना हो. सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स आई एम टेलिंग यू, तो वहां पर देयर माई रोल स्टार्ट्स, द रोल ऑफ माई टीम स्टार्ट्स. दैट इज द कोकून क्वालिटी. What is the quality of cocoons? The cocoon should be reliable. You know, these are the cocoons. I don't know whether you have visited the lab. I think you must have, most of you must have seen the cocoons. This is cocoon. But whatever the cocoons I have been shown, I think less than 2% are good cocoons. But rest of them are defective cocoons. So for that, the farmer has to be taught. He is putting all his inputs. कि पत्ता खिलाते हैं, डिफरेंट इतनी मेहनत करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, but finally he has to produce the good cocoons. He has to be taught. हम अगर घर में बैठ जाते तो वो कुछ क्वालिटी आपको नहीं मिलती. तो वहां पर क्या है, हम लोग वी यूज्ड टू गो इन द फील्ड. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ रेयरिंग टुडे. तो रेयरिंग जब खत्म होती, कितने दिन की रेयरिंग होती है? लेट मी रिफ्रेश यू. ठीक है. देन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग स्टार्ट्स. At the time of spinning, we have to be very cautious. क्योंकि उस टाइम क्या है, कीड़े को अपनी जो उसको बंगाली भाषा में, चूँकि मोस्ट ऑफ आवर रीलर्स आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल या वो कर्नाटका, तो वहाँ पर तार कहते हैं. The silk what they are throwing, what the silkworm is throwing, that is called spinning. उसको स्पिन थ्रो करके स्पिन करना है. That means it has to go inside the cocoon shell. It weaves the house shelter for it. तो वो shelter कैसे बनाना है, that time it is very critical. There we can prevent the cocoons from being the defective cocoons. The important thing there is, we have to maintain whatever the temperature and relative humidity that he must have explained you. That has to be maintained there. And secondly, the usage of mountages. What is mountage? Yes. What type of mountage you have to put there? That's very important. तो हमारे यहाँ पर क्या है, पैडी स्ट्रॉ, इक्लिप्स ट्री के पत्ते, जो हमारा सरसों का जो ये होता है, बुशेस होते हैं, उसमें लगाते हैं. बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर वैरायटी ऑफ माउंटेजेस. एंड द माउंटेज व्हाट वी सजेस्ट, that is collapsible type of a mountage,
or Chandriki that you will see here in the lab. I had gone there. You have here collapsible type of plastic mountage. तो वो मैं क्यों आपको why I am telling you कि that is very important वहाँ पर अगर वहाँ पर कीड़े को जगह नहीं मिली, if it doesn't get the space required, या अगर बहुत ज़्यादा खुली जगह होगी, या माउंटेजेस में अगर वो जो है ये पूरा वो एरिएशन नहीं है, if it is on the floor, so that what will do, तो कीड़ा उधर इधर भाग जाएगा. समटाइम्स वो फॉर्म करता है कोकोन, जो भी उसको हार्ड चीज मिलती है वहां पर. दैट इज कॉल्ड द स्पिनिंग ऑफ द कोकोन. सिल्क वॉर्म थ्रोज सिल्क कंपोजिशन क्या है वो तो पता होगा आपको. व्हाट इज दैट मैम? फिब्रोइन एंड सेलिसिन. फिब्रोइन इज द प्रोटीन मैटर एंड Selicin is the glue, the binding. So both the things are very important in it. तो जब वो कोकून उसको बनाना है उस टाइम उसको कोकून फॉर्मेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 8. अगर उसको ऐसे करके उसको क्या है, बिकॉज अगर वो एक ही जगह वो करेगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, एंटेंगलमेंट्स. दैट मीन्स उस जगह से हमें मतलब वो धागा जो गुंजल बन जाएगा. तो उसको पूरा देखिए नेचर ने क्या बनाया है, इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ 8 ताकि एट द टाइम ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क इट्स वेरी इजी फॉर अस. आई थिंक यहाँ तक तो आपको अंडरस्टैंड हो गया. और एक चीज उसमें देखनी है, बिफोर व्हेन द कोकून दैट सिल्कवर्म लार्वे इट इज राइप, उसका कलरेशन भी बताया होगा सर ने, वो राइप होता है. उसमें आपको सिल्क लैंड्स नजर भी आते हैं, थोड़ा पीलापन उसमें आ जाता है, ट्रांसलूसेंट कलर वो से. तो जब वो उसको माउंटेज में डालने से पहले या तो वो अपना मलमूत्र करता है, लेकिन अगर माउंटेज में डालें तब भी वो मलमूत्र करता है, इट एक्सक्रीट्स. तो वो जो मलमूत्र है उसका वो कोकून फॉर्मेशन से पहले ही वो करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज द होल कोकून विल स्पॉइल. और होता ही उसके पहले वो उसके बाद वो करेगा ही नहीं, तब तक वो स्पिन करेगा ही नहीं. दैट इज वेयर हमारी जो माउंटेजेस है, माउंटेज मटेरियल आपको समझ आ गया, आपको समझ आ गया कुछ थोड़ा. अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो मैं वहाँ से फिर से स्टार्ट करूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए. माउंटेज मटेरियल जैसे मैंने कहा, जहाँ पर उसको कोकून फॉर्म होना है, चाहे वो घास के गुच्छे हम डालें पैडी स्ट्रा के, चाहे हम उसमें कोलैप्सिबल माउंटेजेस रखें, चाहे इक्लिप्टस ट्रीज हों के पत्ते हों, या कोई भी बुश फॉर्मेशन में कोई भी चीज़ जो है एज पर द अवेलेबिलिटी इन दैट एरिया विद द फार्मर्स, वो ठीक होनी चाहिए. द बेस्ट फॉर्मेशन ऑफ कोकून्स इज इन द कोलैप्सिबल टाइप ऑफ माउंटेजेस, क्योंकि वहां पर क्या है, द विड्थ इज फिक्स्ड, द विड्थ ऑफ दैट area, surface area is fixed, so it cannot move around. वो कहीं पर भी नहीं ऐसे कर सकता. Otherwise, मान लीजिए उसको अगर कोई बुश मिल रहा है तो वहाँ पर क्या, it spoils most of the silk, which is called floss. क्योंकि my subject is deflossing, एक मुझे उसमें एक कंपोनेंट डाला है डिफ्लॉसिंग. So that floss तो ज़्यादा वो करता है, that means that is a wastage. But ultimately, in silk, nothing is waste. But the value will be less. That is the only difference. So we don't want to waste that thing, the silk. तो जो वो सिल्क बनाते हैं, उस टाइम उसको उतनी स्पेस मिलनी चाहिए जितना उसको कोकून बनाने के लिए ज़रूरत हो.
that is very important. That is why we train our farmers. Though that is my field or not my field, but we have taken that initiative. We go to farmers at the time of spinning. And one more thing I had told you कि उसको एक्सक्रीटा जो पास करता है, तो वो मान लीजिए एक माउंटेज है, माउंटेज के नीचे अगर कोई कोकून अच्छा बना हुआ है कुछ देर पहले तक, उसका मलमूत्र उस पर नहीं गिरना चाहिए. सो दैट विल बिकम ए स्टेन्ड कोकून. दैट विल इफेक्ट द क्वालिटी एट द टाइम वी आर रीलिंग इट. मैं आऊँगा आपको आसपास, थोड़ा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, बट स्टिल थोड़ा ये मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ कोकून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो चीज़ हमने अवॉइड वहाँ पर करनी है. दीज आर वेरी बेसिक एंड प्रैक्टिकल थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. ये चीज़ें आपको किताब में भी मिलेगी, बट दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो वहाँ एक तो ये हो गया, देन इट विल फॉर्म ए स्टेन्ड कोकून. अनदर थिंग इज इट शुड गेट अ स्पेस जहाँ पर वो पूरा मुंह करके वो जो मैंने कहा आपको कोकून बनाना चाहिए. इट शुड नॉट मेक, यहाँ पर हमारे यहाँ पर इस रीजन में इवन बेंगलोर ऑल्सो शूट पीटिंग होती है. दैट इज पूरी टहनी ही डाल देते हैं पत्तों के साथ. जब वो राइप होता है तो उसी में बना देता है. अगर वो लार्वे सिल्कवॉर्म उस डंडी के साथ होगा तो वहां पर क्या है, वो जिस जगह से वो टच हो रहा है दैट विल बिकम फ्लैट. गॉट इट. तो ये कोकून जो है इसमें वैसे भी कुछ है और वहां पर वो मार्क्स आ जाते हैं. सो दैट विल ऑल्सो बिकम ए डिफेक्टिव कोकून. तो वो डिफेक्टिव कोकून को हमने बचाना है इफ आवर माउंटेजेस आर गुड. एंड यहाँ पर when we started our journey here in this area, we have started our journey in Bihar as I have told you, but they are the rearers. They are so perfect in their field. They produce their nistari cocoons. Nistari cocoons. That is yellow type का वो है, thin ends उसमें होते हैं, pointed ends, and पीले कलर का होता है. Even if the quality of that means the silk content is not there, but they produce the best cocoon out of that. What do you mean by best cocoon? Best cocoon means it should be reliable. That means we should be able to extract the silk from particular cocoon till last pillared layer. जब हमें कीड़ा उसमें बाहर निकल जाए. That means we are extracting the silk recovery is better. जो शुरू से लेके एंड तक वो रील हो जाए वो होता है. अगर हमने यहाँ पर here we are producing the bivoltine cocoons, very good, far superior cocoons we are producing in this area. But those superior cocoons, if they are not reliable, that means that is of no use to us, because there should be the continuity of the thread. It is called reliable cocoons. So these are different types of defective cocoons. और एक होता है कि malformed cocoons, उसका कोई शेप ही नहीं होता है, वो भी इसी का होता है. डिफेक्टिव जो माउंटेजेस हम डालते हैं उसका ये होता है. सर आप सुन रहे हैं? नहीं, यू आर फीलिंग स्लीपी बिकॉज थोड़ा मुझे तो द डिफेक्टिव कोकून्स हमने पहले ही उसको कम करना है. वाई इट इज इम्पॉर्टेंट? इवन इफ यू आर अ फैकल्टी सर, बट आई विल आस्क यू आफ्टरवर्ड्स. No, that is 5 minutes back I was talking. Anyway, on a lighter note. Okay. I know that after taking lunch, but I feel that since you have come from a very eminent university, colleges,
if we have come all along from that place, so we are sharing our experience with you. So it's nothing more than that. So the quality of cocoon is what I was telling, it's very important, very, very, very important. Because I am from the reeling side, post-cocoon side. I want the better quality. Why I am thanking him again and again? Because he has improved the quality with his efforts, being the head of the area. When earlier we used to find out the defective cocoon percentage, now coming to the practical things. How to find out defective cocoon percentage? I will show you that also. That also. What are the defects? I have explained. What's the come to know the cocoon is defective? When it is highly relate or we can Before that, that is the important thing. That is the important thing. We have to prevent these things. The cocoon should not become defective. Because ultimately it spoils the economics of the whole gamut. Suppose in 100 kgs, if we are getting 15 kgs defective cocoon, how much is the percentage? 15%. So 15% means too much. Suppose हमारे यहाँ पर the price of cocoon is, sir, it goes to, we have fixed it at 350, but it goes to 500, 600 also per kg. If a reeler, he purchases 100 kgs at the rate of 500, how much he is spending? 100, 50,000. 100 kg into 500, how much it is? So, if out of that 15 into 5, how much is that? 7,500. That means there itself we are losing. So that is very important. That's what Dr. Amit, I think he is taking the class on startups also. So it will be useful for them also. I am preparing you for that also. So that's very important. To prevent the cocoon from becoming defective cocoon at the initial stage. Another important process comes the harvesting. Harvesting is very important in every sector. किसी भी agriculture produce के लिए. That's very important. We have to harvest them because it is very, ये तो live material है इसके अंदर. With care. After 6 days उसको तोड़ना है वहाँ से, harvest करना है. In crude language I am telling you. उसको वहाँ से what we have to do, उसको 3 दिन के बाद नहीं, unless pupation is complete. वो pupation, लार्वा से वो प्यूपा बनता है. वो प्यूपा भी अंदर ही बनता है, इतना छोटा सा. मैं आपको दिखाऊंगा, सर ने दिखाया भी होगा. तो वो प्यूपा बनना चाहिए. अगर वो लार्वा ही वो 3 दिन में तो वो भी फेंक ही रहा है अपना. अगर 3 दिन के बाद ही आपने उसको तोड़ दिया, what farmers do, they have the tendency थोड़ा उस से जल्दी जल्दी ये करके बाद में तो ले लिया मार्केट में बेच दिया. लेकिन the reeler, the cocoon purchaser, they have to think of the economy. वो कोई लॉस में नहीं जाएगा. वो पूरा कट करके देखते हैं and they see there कि whether this cocoon is reelable or not, how many defective cocoons are there. So मैंने आपको बोला था कि हम कैसे वो मेजर करें. Either we can do it by weighment. Suppose we take randomly 1 kg of cocoon from a lot. उस 1 kg में हम क्या करेंगे, डिफेक्टिव कोकून्स निकालेंगे इकट्ठे. One more type of defective cocoon is there, which I forgot. That is a double cocoon. What is double cocoon? No, not
because two silkworms, they are making one cocoon. So what is happening, that वो एकदम अंडा जैसे हो जाएगा. स्टार्टिंग में हमारे फार्मर्स कहते थे सर ये अंडा जैसा बना है, इसका रेट क्यों कम हो गया. फॉर दैट वी आर देयर. लेकिन वो कोकून भी वेस्ट नहीं जाता, और वो कोकून, डबल कोकून हम उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें दो सिल्क वॉर्म्स, व्हाट दे आर डूइंग, द सिल्क एंटेंगलमेंट इज गोइंग ऑन. वो भी बना रहा है अंदर से, ये भी बना रहा है. सो एट द टाइम ऑफ रीलिंग, एट द टाइम ऑफ कुकिंग, अनवाइंडिंग, वी डोंट गेट द सिंगल थ्रेड entangled. So that is a defective cocoon. So what we have to do in the field, what we are doing, we are asking the farmer to separate this at the time of harvesting itself. कोकून को जब आप हार्वेस्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, 3 टोकरियां रखो. कीप द 3 बास्केट्स. एक बास्केट में गुड कोकून रखो, दैट विल बी द मैक्सिमम, बड़ी टोकरी. दूसरी में आप जो अदर टाइप ऑफ डिफेक्टिव कोकून्स है, फ्लिम्जी है, फ्लिम्जी में जिसमें सिल्क ही नहीं होता, थिन एंड कोकून्स जो बर्स्ट हो जाते हैं उसको बॉईल करने पर, तो वहाँ वो एंड स्टेन्ड कोकून्स, डिफॉर्म्ड कोकून्स, उसकी एक टोकरी बनाओ, एंड डबल कोकून्स की एक और टोकरी बनाओ. बिकॉज तीनों से हम सिल्क बनाएंगे. जो गुड कोकून से है उसमें हम अच्छी क्वालिटी ऑफ सिल्क बनाएंगे, बिकॉज दैट इज फुल्ली रिलेबल. डबल कोकून से हम डूपियान सिल्क बनाएंगे, जिसका कॉस्ट अच्छे कोकून से थोड़ा कम होता है. थोड़ा कम नहीं, बहुत कम होता है. सपोज उसका 500 है, इसका 200 होगा. अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, वंस इन 1 ईयर हमें बहुत डिमांड थी फ्रॉम जर्मनी, तो वो 300 तक गया, 400 तक गया. तो फिर क्या है, अच्छे कोकून में से भी वो डूपियान बनाते थे. डूपियान सिल्क यान मीन्स जिसके आपके पर्दे बनते हैं, वेस्ट कोट्स वगैरह बनते हैं, सूटिंग, शर्टिंग, ठीक है, उसकी अपनी एक वैल्यू है. कारपेट्स, लेकिन कारपेट्स क्या है, वो रील सिल्क से बहुत कॉस्टली बनते हैं. दैट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द स्टेपल फाइबर, दैट इज स्पन सिल्क, वो अलग है. और ये जो है फ्लिम्सी कोकून्स, इससे भी आप मोटा धागा बना सकते हैं. आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग, यू हैव टू बॉइल द कोकून्स. नाउ कमिंग टू द बॉइलिंग, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. जब आप बॉइल करते हैं कोकून को, which I will show you because there was lot of stress from Madam Seema, ये आपके क्या नाम है, वोरा जी हैं कि सर आप प्रैक्टिकल कराइए. दो आई एम नॉट द पर्सन एकदम वो टेक्नीशियन टाइप का, मैंने इतना नहीं किया होगा, लेकिन किया है स्टार्टिंग में. फॉर 3 months माई स्टार्टिंग कैरियर ऑफ माई स्टार्टिंग ऑफ माई कैरियर, 3 महीने हमने वो चरखा घुमाया है, और डायरेक्टर वॉज टेलिंग ना नहीं आपको इसमें ये करना है, तब भी हमने वो सीखा है. लेकिन उसके बाद से हमने नहीं किया, बिकॉज अवर टेक्नीशियंस आर डूइंग इट, टू बी वेरी फ्रैंक. तो वो बॉयल करना पड़ता है हमें कोकून को. व्हेन वी बॉयल द कोकून, वो बॉइलिंग का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेथड है. इट शुड नॉट बी ओवर कुक्ड, इट शुड नॉट बी अंडर कुक्ड. सिंपल एग्जाम्पल, चावल हमने बनाने हैं, ठीक है, हम तो फील्ड में ऐसे ही बात करते हैं, जो हमारी लेडी फार्मर्स होती हैं, उसको ज़्यादा नहीं पकाना है तो वो हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी. अगर आपने पूरा नहीं पकाया तो वो हार्ड रहेगा. सेम थिंग हियर आल्सो, एंड दैट थिंग कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस. दे आर द एक्सपर्ट्स. व्हाट इज द डिफरेंस between, it's a natural protein fiber that you all know, silk. What is the difference between silk and other substrates? क्या है? और कौन कौन से टेक्सटाइल सबस्ट्रेट्स, टेक्सटाइल मटेरियल होते हैं? आपने क्या पहना है मैडम? कॉटन. आपने क्या पहना है? सबने कॉटन.
सबने, nobody has used synthetic. Yes. ठीक है, polyester, Georgette सिल्क ऑल्सो, ठीक है, कोई बात नहीं, वो पॉलिस्टर का भी वो बन सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द ट्विस्ट एंड ऑल दैट, वो दैट्स द टाइप ऑफ द फैब्रिक व्हाट वी प्रोड्यूस। लेकिन जो हमारे मटेरियल्स है, एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीथिलीन, ठीक है, ये हमारे सिंथेटिक में आते हैं। तो नेचुरल में क्या आते हैं? सिल्क, वूल, कॉटन। लेकिन प्रोटीन क्या है? ये हमारे सिल्क एंड वूल, एनिमल फाइबर्स, एंड कॉटन इट इज सेल्यूलोसिक। एंड ये जो है ये दे आर फॉर्म्ड आउट ऑफ एमिनो एसिड्स, जो फिब्राइन होता है, ठीक है। उतना ज़्यादा मैं आपको, आप उसमें ज़्यादा जानते होंगे। तो when I started my career, as I was, मैडम ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, I started my career with Moradji Mills as textile production engineer। तो वहाँ पर मैं एक दिन में 150 मीटर वहाँ पर कपड़ा तैयार होता है, प्रोसेस होके बाहर निकल, फिनिश प्रोडक्ट। प्रोसेस होने में बहुत दिन लगते हैं, बट जो फिनिश प्रोडक्ट उधर से निकलता था वो 150 मीटर निकलता है। मोरारजी मिल्स मुंबई, जहाँ से आपको सिग्नेचर शर्टिंग्स, वो हमें कम ही मिलती थी, वो एक्सपोर्ट होती थी, वेरी गुड रेपुटेड, जो ग्लो प्लास्ट, वीआईपी ग्रुप जो है, वीआईपी अटैचीज वगैरह जो है, तो सेम ग्रुप। आपने तो मुझे चांस मिला बॉम्बे ट्रेनिंग में, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया उधर। Now why I'm telling all this thing, कि I was working in that field where only cotton and synthetic material was being processed or produced. लेकिन after coming to Central Silk Board, joining Central Silk Board, हमने थोड़ा सा पढ़ा था, एक आध पेजेस होंगे जो सिल्क के बारे में, लेकिन बाद में मुझे यहीं पर ज़्यादा मालूम पड़ा कि एक्चुअल में सिल्क क्या होता है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस। वहाँ पर जो आपका नायलॉन, एक्रिलिक, कॉटन, व्हाट इज दैट? दैट इज मशीन मेड। उसकी थिकनेस जो है यार्न की, दैट इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट? मशीन। वो स्पिनर रेट से पास होता है। मशीन का एपर्चर जो होता है ना, वो फिक्स रहता है, इसको इस काउंट में हमने निकालना है। लेकिन सिल्क में तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। Why? Here's a question to you, मैम। हाँ, फिर वेरी गुड। वो इंसेक्ट का सिक्रीशन है, तो इट डिपेंड्स कि वो कितनी थिकनेस से कर रहा है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। देयर कम्स द रिसर्च जो आप बोल रहे हैं। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, जो रिसर्च हो रहा है इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हमारे सेंट्रल सिल्क बोर्ड में, वी ट्राई टू प्रोड्यूस द कोकून्स और एक्लेमेटाइज दैट रेस ओनली, जो एक यूनिफॉर्म हमें डीनियर दे दे। द थिकनेस ऑफ द यार्न इज कॉल्ड डीनियर। ये याद रखना, मैं आपको कल पूछूंगा। द थिकनेस, जो मोटाई यार्न की होती है, धागे की, उसको बोलते हैं डीनियर। DENIER, डीनियर, DENIER, डेनियर, ठीक है, डीनियर और डेनियर, ठीक है। तो वो डीनियर जो है, उसमें कोशिश करते हैं हम कि एक जैसा ही वो बने। इट डिपेंड्स ऑन द रेस, बट व्हाट हैपन्स, देयर आर डिफरेंट रेसेस, एंड देन कि फील्ड में हमारे फार्मर ने उसको कितनी फीडिंग्स दी है, कैसा कोकून है, कैसा उसने ये किया, कोई बीमार तो नहीं हो गया रेयरिंग के टाइम में, कुछ हार्वेस्टिंग के टाइम में प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो देयर इट दिस थिंग वेरीज, लेकिन जनरली वही रेसेस दी जाती हैं जो एक यूनिफॉर्म दी जाए। लेकिन देन कम्स देन अनदर प्रॉब्लम, which because out of the experience we have been called, you should take advantage of that। लेकिन सिल्क
cocoon में भी there is difference in DNA from inner layer to outer. So that difference क्या होता है? That affects the final product, that is silk yarn. This thing you should keep in mind. ठीक है? Though it may be a marginal difference, but it affects. And second important thing is, what is the difference? Difference is that we have to feed the cocoons. हमारे यहाँ पर कोकून बॉइलिंग के बाद रीलिंग प्रोसेस आता है. The reeling process comes. Reeling means the extraction of silk from the cocoon and we reel it. अब जो ये एक कोकून है जो हम आपको कल, जो मैम ने कहा, हमने सोचा था आज ही करेंगे, लेकिन कल हमको ये कराएंगे आपको ये हाउ टू फाइंड आउट द सिंगल कोकून फिलामेंट. उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस कोकून में हाउ मच इज द फिलामेंट, हाउ मच इज द फिलामेंट लेंथ? नो प्रॉब्लम मैडम. है हाउ मच इज 1000 मीटर? 1000 मीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर. एग्जैक्टली, यू आर राइट. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. बट आई वॉज थिंकिंग दैट ऑल ऑफ यू विल टेल yes, it is 1 kilometer, 1000 meters. Doesn't it bracket the size of the? No, that's what I'm telling you. वही तो क्वालिटी है. that depends on the race जिसके लिए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं. जैसे आपको मैं हमारे यहाँ का we are putting up the practical figures. We will never say that we are achieving 1000 meters. नहीं. On an average, we get 850 meters here in this region because of so many things. Temperature, climate, everything is involved in that. लेकिन whereas in Bangalore, in Karnataka, in South, we get 1000 meters easily because of the congenial temperature, congenial atmosphere. यहाँ पर उसको रेयरिंग खत्म होते ही 45 डिग्री चला जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स मैटर. और दूसरा डिपेंड करता है कि फार्मर्स यहाँ पर वी आर गेटिंग 2 क्रॉप्स एंड दैट ऑल्सो इन J&K which is a major producer. Maximum crop is only 1 crop, spring crop, because both the temperatures are extreme. ठंडा भी बहुत होता है, गर्म भी बहुत होता है. Whereas in south, वहाँ पर तो कंटिन्यूस क्रॉप्स चलती रहती हैं. दे हैव केप्ट, डॉक्टर साहब ने आपको बताया होगा, दे हैव केप्ट डिफरेंट उनको बगीचे बनाए हुए हैं. ये क्रॉप खत्म हो गई उसको लगाएंगे, उसको होगी उसको यूज़ करेंगे. तो वहाँ पर कंटिन्यूस प्रोसेस और ल्यूक्रेटिव जॉब है. तो यहाँ पर थोड़ा एक यहाँ पर प्रॉब्लम है, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग. बहुत ट्रायल्स हो रहे हैं और हो सकता है आगे हम और क्रॉप्स भी ले लें, बट एज ऑफ नाउ ओनली 2 क्रॉप्स आर पॉसिबल हियर. और J&K में बहुत ज़्यादा गर्मी ठंडा है, तो मैक्सिमम वहाँ पर 10-15% दूसरी क्रॉप होती है. वैसे तो ऑलमोस्ट 85%, 80 to 85% वो 90% सिंगल क्रॉप ही होती है. ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है हमारी लैब्स में, आपको मैंने बोला कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं. दे सेंड देयर कोकून्स to our lab for testing purposes. Whatever the cocoons they are fixing the breeding lines. मतलब कौन सी लाइन हमने लेनी है जो अच्छा बनाती है. But unless and until we give the results, approve them, approve तो चलो वो बाद में जो भी अथॉरिटी है, लेकिन हमारा उसमें इम्पोर्टेंट है. फाइनल तो है हमें सिल्क कितना है इसमें, हमें रीलेबिलिटी कितनी है. What do you mean by reliability? I have explained it. How much time you can pick up? Yes. Real ability.
उसको रील होने की क्षमता, सिंपल वर्ड्स रखने का। एंड व्हाट इज लीनियर? थिकनेस ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, तो जब हम रील करते हैं वहां पर ये जो धागा हम निकाल रहे हैं, ये तो आउट ऑफ, इसको कहते हैं डिफ्लॉसिंग, ये डिफ्लॉस करते हैं। ठीक है, इसके लिए डिफ्लॉसिंग मशीन भी होती है, ऐसे ऐसे कुछ कोई साइंटिफिक इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन उसको ऐसे ऐसे करके इवन डंडे से भी इसको फ्लॉस निकालते हैं। दैट इज द, वही जो स्टार्टिंग में वो वेस्ट हुआ होता है उसको अपने एंड्स ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन वो तो जैसे भी हो वो कुछ ना कुछ तो वो होगा ही रहा है, लेकिन इट शुड नॉट बी मैक्सिमम। और हमारे जो परचेजर्स, दे वांट द कोकून विथ फ्लॉस। व्हाई? बिकॉज इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम सॉइलिंग। सॉइलिंग मतलब गंदा नहीं होता है, बाद में कोई धूल नहीं जिसमें करती, बाद में वो खुद ही करते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो डिफ्लॉस मटेरियल है, व्हाट इज दैट? दैट इज सिल्क वेस्ट। वो सिल्क वेस्ट को भी यूज करते हैं, उससे गीचा बनाते हैं। दैट मीन्स मटका सिल्क, कतली में ऐसे तो मोटा धागा बनाते हैं। तो ये मालदा में, एज आई हैव टोल्ड यू, वी स्टार्टेड अवर कैरियर इन बिहार, किशनगंज, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट नियर दार्जिलिंग। तो वहाँ से नज़दीक में मालदा एरिया है। मालदा में एवरी हाउस होल्ड इज अ रीलर। और वहाँ पर दहेज में क्या दिया जाता है? एक कट गई उसको बोलते हैं। एक जो है ना, एक जो कोको, ये रीलिंग की एक मशीन छोटी, इट्स अ चरखा टाइप ऑफ थिंग, उससे थोड़ा उसको गोश्त रीलिंग बोलते हैं, दैट इज अ कॉटेज टाइप ऑफ। देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है। दहेज तो गलत है, आई कैन से, बट इट इज अ लाइवलीहुड। क्यों डॉक्टर साहब? हैव यू सीन दियर? वहाँ हर घर में वो देते हैं ताकि वो उनका वो जरिया, उसको बोलते हैं जरिया रोजगार, जरिया रोजगार। तो कितनी अच्छी बात है। तो वो शुरू से लेके, जब वो बच्चे होते हैं तब से लेके एंड तक वो वही काम करते हैं और सिल्क बेचते हैं। दे आर कॉल्ड द स्किल्ड। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं किसी को ट्रेन करूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने खुद किया है, द पर्सन्स हु आर डूइंग देमसेल्व्स, they have started their career from childhood in this industry, they are the experts. There the skill comes. Skill क्या होता है? What do you mean? What is the skill? I think you know Urdu. Hunar. Hunar. Efficiency is something different. It can be enhanced by machines. It can be enhanced by some. ये हुनर है. And in this sector, a person, a mechanic, or a workforce, he has to become an unconscious driver. उसको मैं मानता हूँ skilled workforce. What is unconscious driver? मैं गाड़ी चला रहा हूँ इतने साल से, ठीक है, इवन इफ माई चिल्ड्रन टेल मी पापा आप मत चलाया करो, लेकिन तब भी मैं चला रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई डोंट फील इट इज़ डिफिकल्ट। वो खुद ही हाथ पे पाँव चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन टारगेट मुझे सही है, सीधा चलना है, कहीं उधर उधर ठोकना नहीं है, दैट इज़ द स्किल। बट डोंट यूज दैट इन ड्राइविंग एटलीस्ट। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल। ड्राइविंग में कितना भी स्किल्ड हो जाए, आपने आपको कभी स्किल्ड नहीं समझना। तो ये स्किल क्या है? व्हाट इज़ द स्किल? ये तभी आता है जब आप उसमें फुल्ली इन्वॉल्व होते हैं। एंड इस फिलामेंट का, सिल्क का डीनियर वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू। डीनियर मीन्स थिकनेस, इट शुड नॉट वेरी। अब इसका जो मैंने कहा ये डिफ्लॉस हो रहा है, आफ्टर बॉइलिंग इट, आफ्टर सम टाइम विल फाइंड एन एंड
एक सिल्क का एंड हमें मिलेगा जहाँ से वो कंटिन्यूअस 800, 1000, 1200 मीटर तक ये धागा जाएगा। लेकिन क्या ये एक फिलामेंट है, इससे आप धागा बना सकते हैं? क्यों? We cannot weave anything out of it. Is it? That is why we have to bind. हमने ट्विस्ट कर, हमने उसमें एक मशीन होती है हमारी रीलिंग मशीन, वायर वी हैव टू, हमें 8 कोकून्स थ्रो करने हैं। वाई 8 कोकून्स? 8 से 10 कोकून्स भी हम कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द डेनियर रिक्वायरमेंट ऑफ योर पार्टी, ऑफ योर परचेजर। सपोज वो कहेगा आपको हमें 20-22 का डेनियर चाहिए, दैट मीन्स 20 से 22 तक। सपोज एक, दैट्स वाई टुमारोज एक्सपेरिमेंट दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बेसिक है। बिफोर रीलिंग ऑफ cocoons, every silk unit they have to test the cocoons for the denier, for the filament length, for the broken filament length. तो वहाँ पर अगर आपको 20-22 का आपको धागा चाहिए तो आपको कितने कोकून को जोड़ना पड़ेगा? लेकिन आपने कैसे बोल दिया 8? पहले आपको एक डीनियर का, एक कोकून का डीनियर निकालना है। दैट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट। 5 denier per each cocoon. है 5 denier each cocoon means 3. एक सिल्क यार्न बनाने के लिए वाई इट इज नेसेसरी? इस फिलामेंट से वी कैन नॉट मेक एनी क्लॉथ्स, वी कैन नॉट, इस धागे, ये तो कुछ नहीं है। इसके हमने 8 से 10 कोकून, मैं क्यों बोल रहा हूँ 8 से 10 कोकून? क्योंकि अगर एक कोकून का डीनियर जो हम निकालेंगे 2 से 2.5 होगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट। अगर हमारा एक कोकून का 2 है, हाउ मच कोकून्स वी शुड फीड? अगर उसमें 2.4 है तो कितने होने चाहिए? तो अकॉर्डिंगली, गॉट इट? लेकिन हमें 20-22 ही मिलना चाहिए। अगर 20 और 28 होगा, दैट मीन्स it is not gradable silk at all. That is the difference between synthetic substrates and this silk. Even वो जो वूल है वो भी हम मशीन मेड है, वहाँ पर भी हम स्टेपल फाइबर बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो फिक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है? हियर द स्किल कम्स। अब आपको मान लीजिए, Why am I explaining this is because this is बाकी कुछ सेरिकल्चर यानी पोस्ट कोकून में यही मेन है। अगर आपको 10 कोकून लगाने हैं या 8 कोकून लगाने हैं, 8 का आपका अगर 6 कोकून उधर लगा हुआ है तो क्या होगा? वेरिएशन हो जाएगी। सो राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट आपको उतना ही कोकून रखना है। एक कोकून का भी अगर फर्क हो गया, बट अगर कोई लास्ट में, जैसे मैंने कहा है, तो वहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा कोकून दे सकते, क्योंकि वहाँ पर डीनियर जो है मैंने कहा कम होता रहेगा। बट वहाँ पर हम कर सकते हैं। देयर कम्स द स्किल। वो एक सिल्क रीलर के पास ही है, उसको पता है हाँ जी इसमें ऐसे कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये इधर डाल रहा है, इधर कितने कोकून, उसको पता है। तो ये चीज़ जो है हमारे सिंथेटिक, जब मैं मोरारजी मिल में था वहाँ पर ये परेशानी नहीं थी। मशीन उतने ही काउंट का, उतने ही उसका थिकनेस का वो हमें धागा देती थी। यहाँ पर द स्किल इज़ इम्पोर्टेंट। तो अगर आपका मोटा और पतला हो गया धागा बना, व्हाट विल बी द इफेक्ट? सपोज आपका धागा जो बन रहा है कई जगह मोटा है, जहाँ पर आपने 10 कोकून दे दिए हैं या 12 कोकून दे दिए हैं,
कहीं जगह आपने 6 कोकून दिए हैं, व्हाट विल हैपन? साइज डिविएशन। एक तो वो है, लेकिन मान लीजिए वो टूटने से भी बच गया, एंड व्हाट देयर कम्स, ये जो डॉक्टर साहब दोनों बैठे हैं मुझे बोल रहे थे व्हाट इज सिल्क टेस्टिंग, व्हाट इज ये सर, वो उसमें बोलिए, वही है, वही चीज़ हम टेस्ट करते हैं। हाँ, जो आपको लास्ट में जो है, जो पहले जो वो आपका मोटा रहता है, जो लास्ट में है वो कम होता रहता है। हाँ ठीक है, लास्ट में कम हो रहा है ना, तो उसमें आप एक एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। इससे मतलब दैट मीन्स यू हैव टू कंट्रोल इट मैन्युअली। आपको इसमें कोई दो राय नहीं है, पर्सन शुड बी स्किल। अगर उसमें मोटा पतला बन गया है, व्हाट आई वाज टेलिंग यू, तो दैट इज कॉल्ड इवननेस, दैट इज कॉल्ड इवननेस टेस्ट। वो सेरिप्लेन, सेरिग्राफ वगैरह बहुत बड़ी वो हैं, लेकिन वो एक रूम होता है, वहाँ पर पैनल्स बने हुए होते हैं, उस पैनल हमारा स्टैंडर्ड पैनल होता है, तो हम देखते हैं कि वो किस कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है। उसके पहले उसको एक सेरिप्लेन पैनल बनाते हैं, सपोज इतने इंचेस का वो होता है, सेम टाइप ऑफ वी कंपेयर विद दैट, तो वी पुट इट इन दैट कैटेगरी। अगर आपको उसमें वेरिएशन कहीं पर मोटा है कहीं पर पतला है, तो वो अनग्रेडेबल भी हो सकता है। दैट इवननेस शुड बी मोर देन 90%, तभी वो सक्सेसफुल है। फाइनली व्हाट हैपन्स, फाइनली जब आप धागे को वीविंग करते हैं, वीविंग क्या चीज़ है आप बताइए मुझे, व्हाट इज़ वीविंग, कैसे होता है, किस मशीन में? वेरी गुड, लूम्स में। लूम कैन बी हैंडलूम और पावर लूम, लेकिन हैंडलूम को हमारी जो गवर्नमेंट है उसको हमने बरकरार रखना है, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो आपको पावर लूम में नहीं बनेंगे। पावर लूम एनहांसेस द प्रोडक्शन। खैर आजकल बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, CATD कंप्यूटराइज्ड एडेड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, उसमें वो करके जैकार्ड चलता है, वो तो अलग बातें हैं, लेकिन जो आपको हैंडलूम में क्वालिटी बनेगी वो आपको कहीं नहीं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो भी हैं, आप लोग देखते होंगे कि कितना उनमें हुनर होता है। एंड हियर आई विल फॉरगेट आफ्टरवर्ड्स, जब भी आप कभी हैंडलूम का प्रोडक्ट देखते होंगे, अगर आपको मन पसंद हो गया है, इट्स माई रिक्वेस्ट, माई पर्सनल रिक्वेस्ट, नॉट ऑफिशियल, कभी भी बार्गेनिंग मत कीजिए। व्हेन आई टेक माई मिसेज टू शॉप, भाई कभी भी सिल्क एक्सपो लगता है, मैं उसको बोलता हूँ कभी बार्गेनिंग, बिकॉज आई नो हाउ दे स्वेट, पिट लूम्स में बनाते हैं, कैसे ह्यूमिडिटी मेंटेन करें, इट इज़ रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं है कि तभी वो आपको चीज़ें हाथ में कैसे वो करते हैं, जो आपके फूल बने हैं, इट इज़ सो, कितना उसमें मेहनत लगी होती है, कई महीने लग जाते हैं, कॉस्ट भी ऐसा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत ठीक है चलेगा, लेकिन बट नॉट मच। पावर लूम में आप कर लीजिए, प्रोडक्शन इज़ मोर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब कमिंग टू माई पॉइंट, जो आपका अगर कपड़ा मोटे और पतले धागे से बन गया, व्हाट विल हैपन, आपको तो वो कहीं पर लगेगा, देखो यार ये तो इधर कुछ पतला लग रहा है, इधर मोटा लग रहा है, तो यू विल नॉट परचेज, दैट इज़ अ डिफेक्ट। एंड मोर ओवर व्हेन वी डाई दैट, जब उसकी रंगाई हम करते हैं,
color difference will be there, the shade difference. कलर कहाँ पर ज़्यादा चढ़ेगा? जहाँ मोटा हो। जहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है वहाँ पर उसको मोटा होगा। गॉट इट? सो दैट्स वाई ये सिल्क इंडस्ट्री जो है, ये कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री है, हमें उनकी कदर करनी है जो भी वहाँ पर उसमें इन्वॉल्व हैं। वो कैसे किस हिसाब से बनाते हैं। एंड हमारे यहाँ पर जब आप कभी आएंगे या कभी भी होगा, विल शो यू, हमने वहाँ पर एक हमारी UCRF फेडरेशन है, उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन, अभी वही वहाँ पर है। तो वहाँ पर जो वर्कफोर्स है, दे आर अनकॉन्शियस ड्राइवर्स। इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस है। जब आप एक बार रील करते हैं तो रील में जो धागा चढ़ता है, आई विल शो यू टुमारो, उसके बाद एक और प्रोसेस होता है री रीलिंग। वो छोटा रील होता है, उसका छोटा ये होती है सर्कमफ्रेंस होता है, लेकिन बड़ा फिर हमने करना है, दैट इज कॉल्ड री रील। उसका सर्कमफ्रेंस दैट इज डिफाइंड 1.125 मीटर्स, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, वो हर जगह वही होना चाहिए। एंड वो री रीलिंग प्रोसेस वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी डिफेक्ट्स है, दैट मीन्स अगेन वी आर अनवाइंडिंग द सिल्क फ्रॉम द रील ऑन टू द री रीलिंग स्कीम, ताकि जितने भी मान लीजिए उसमें कोई धागा कटा हुआ है, कहीं पर जोड़ नहीं लगा है या कहीं पर गम लगा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें डिफेक्ट्स हम वहाँ पर वो निकाल सकते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड, वो मैं आपको बताऊंगा, आई विल शो यू टुमारो। तो इनफैक्ट यू विल सी इट इन योर लैब ऑल्सो। मैम आपका टाइम तो नहीं हो रहा है? सो हियर ये मैं आपको बोल रहा हूँ, दिस इज द सिल्क स्कीन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज द रा सिल्क। तो ये वही 8 से 9 कोकून को जोड़ के ये धागा बना है। दिस इज कॉल्ड सिल्क यार्न, रा सिल्क। इट कंटेन्स सेरिसिन ऑल्सो, अभी है इसमें, तभी ये हार्ड है। बट व्हेन वी डिगम इट, डिगम दैट इज सेरिसिन को हमने कुछ उसमें सिर्फ 20% तक ही रखना है, मतलब बहुत ही कम इसमें ही रखना है। इट डिपेंड्स, कई लोग जिनको ज़्यादा डिपेंड्स ऑन द व्हाट टाइप ऑफ फैब्रिक दे आर मेकिंग। एक और चीज़ मैं आपको बाद में भूल जाऊंगा, मैं वीविंग आपको मैंने कहा है, वीविंग में कौन से धागे होते हैं, व्हाट आर द थ्रेड्स वी आर यूजिंग, उसको क्या कहते हैं? द लॉन्गिट्यूडनल वन इज कॉल्ड वार्प, वार्प यार्न, एंड वेफ्ट, हिंदी में बोलिए ताना बाना। अरे वो आप तो सेरिकल्चर के, आप मत, आप छोड़िए, आप यू शुड नॉट रिप्लाई टू एनी दिस थिंग। ये सो मेनी गुरुज, ठीक है। ताना एंड बाना। ताना क्या होता है? एंड जो बाना है, जो उसमें इस बीच में शटल मूवमेंट जिससे होती है, वो रीड के साथ जो खुलता है ऐसे ऐसे करके, उसके बीच में जो जाता है वो दैट्स कॉल्ड वेफ्ट। तो इट डिपेंड्स, आपको वेफ्ट यार्न में मोटा धागा हम यूज़ करते हैं, या दोनों में हम एक टाइप का ही कर सकते हैं। तो दिस थिंग यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, ताना एंड बाना, तभी मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ पर आना सार्थक हुआ। ताना बाना और आना, ठीक है। सब कुछ मैंने राम कहानी बताई, लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं पता। कल भी आना आपका। नहीं, चलिए कोई बात, मैं क्यों आज ये कवर कर रहा हूँ, कल पता नहीं क्या
फिर ये चीज़ याद रहेगी नहीं रहेगी. सो नाउ कमिंग टू द, जो मैं कह रहा था आपको, डिगमिंग. तो यू कैन सी, यू कैन फील इट, इट इज़ रियली सिल्क. आप सभी को ये दिखा सकते हैं. तो मैंने उनको बोला ऑफिस में, आप जल्दी जल्दी से यार दे दो, कुछ तो दिखाओ. सी हाउ सॉफ्ट इट इज़. This one will be prepared after the stage. यस, इट इज़ डिगम्ड. सोप सोडा के साथ प्रोसेस करके. इट इज़ विदाउट सेरिसन. ये सेरिसन, हाँ. नहीं नहीं, सारा भी नहीं. वाई सारा नहीं. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Because it should sustain the strains of weaving. जो स्ट्रेसेस होते हैं ना उसमें, इसमें एक टेस्ट होता है इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो ये दोनों चीज़ें हमें मेंटेन करनी है. तो इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी ब्रिटल, अदरवाइज इट विल ब्रेक. तो इट डिपेंड्स. हम 20% तक इसको डिगमिंग करते हैं. 20, 23 जितना तक ये कर सकते हैं. इसमें जो हमने बाद में डिगमिंग करने के बाद, इसमें अराउंड कोई 40% के करीब रहता है. 40% के करीब रहता है. तो 20% हम निकाल लेते हैं, 20 to 15%. तो बाकी जो है उसमें थोड़ा बहुत रखना चाहिए बॉयल करके. दैट इज सोप सोडा सॉल्यूशन में. दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस, डिगमिंग करके. And tools are required to prepare this type of product from this much of product. That's what, sir, I was explaining to you. I should ask you rather. In the beginning you said 8. See, this is one silk yarn. This, ये तो बहुत सारा इसमें हैंडलिंग हो गया है. ये कंटिन्यूस है. इसको 8 से 9 कोकून हमें लगे हैं एक धागा बनाने में, एक धागे के लिए. और उसी से, दैट इज़ द डीनियर. इसकी थिकनेस कितनी है? 20 से लेके 22 तक. दैट इज़ अ यूनिट. इट्स अ रेंज. दैट मीन्स हमें कोशिश करनी है 21. सपोज 3 है, रेंडेट है, कितने कोकून हम रखेंगे? 21 आ जाए, 7 आ जाए. सो वी हैव केप्ट द रेंज. इट शुड नॉट बी मोर. देन द साइज डिविएशन विल बी मोर. वहीं पर क्या है, साइज डिविएशन अगर ज़्यादा है तो आपका कपड़ा जो है दैट बिकम्स अनइवन. तो आपकी डाइंग वगैरह जो है, दैट मीन्स, हाँ जी, हाँ हाँ, बट इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर लॉट. यस, आपको 2 भी आएगा. हम जो है वही फ्रॉम पोस्ट कोकून, वी आर रिक्वेस्टिंग देम कि आप 1.8 ही बनाइए, हमें कम से कम दे दीजिए डीनियर वाला. वाई? की क्वालिटी अच्छी आएगी और डैनियल का मतलब एक स्मूथ कपड़ा रहेगा. क्योंकि अगर एक कोकून कट गया हमें तो कम ही डीनियर फ्लक्चुएशन आ जाएगी ना. बट जनरली होता है इट इज़ अराउंड 2.3, 2.4 ऐसा ही इसमें होता है. ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है. एंड इट वेरीज फ्रॉम लॉट टू लॉट. हाँ, यस, वही तो है. दैट इज द रिसर्च. That is the research. Yes, it is very important. Yes, it is very important. और ये सीजन पर भी डिपेंड करते हैं. सपोज द सीजन, स्प्रिंग सीजन, देयर वी कैन प्रोड्यूस द बेस्ट कोकून्स एंड आउट ऑफ दैट द बेस्ट सिल्क. और जो रेनी, आई मीन द ऑटम वाला होता है, उसमें थोड़ा सा कम क्वालिटी होती है. वाई? बिकॉज दैट टाइम्स वो रेन्स एंड बहुत सारे फैक्टर्स और हैं. मान लीजिए स्पिनिंग के टाइम में अगर आपको कभी रेन हो गई तो वो टेम्परेचर मेंटेन, ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं होती. तो वहाँ पर क्या ज़्यादा स्टिकीनेस हो जाती है उस कोकून में. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अनवाइंड दैट कोकून. सो यहाँ तक आपको आई फील इट्स क्वाइट क्लियर. तो व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ सिल्क्स? दैट सर ने बताया होगा. मूंगा कहाँ पर होता है? आसाम में विच प्लेस?
आसाम में बोको इज एरिया जहाँ पर वो ज़्यादा होता है। हाँ बिल्कुल वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो आसाम वहाँ, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट सिल्क? भाई वेरी कॉस्टली, हाउ मच? आपके कितना? बहुत महंगा होता है सारी वो सब। आपका जो मलबरी का सिल्क जो मैंने ये बताया, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस? है सिल्क पर केजी, रॉ सिल्क पर केजी यहाँ पर होता है इसका 5,000 से 6,000 रुपये पर केजी। अभी बढ़ा है, देयर वाज अ टाइम जब इसका कम भी हो गया था। दैट इज़ द प्रॉब्लम, फ्लक्चुएटिंग उस टाइम पे, लेकिन अभी ठीक है। लेकिन मोगा का जो है 25,000 से स्टार्ट होता है। साड़ी बहुत महंगी है। महंगी है ना, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन सिल्क। उसको और कुछ आपको नहीं करना है, नो कलरेशन नथिंग रिक्वायर्ड। तो एक और है टसर, ठीक है। टसर में भी हमारे दो टाइप ऑफ कोकून्स है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो टेम्परेट में जो हमारे यहाँ वो बनाते हैं, दैट इज़, ये देखिए, दिस इज़ ओक टसर, दिस इज़ कॉल्ड पिडंकल। सिल्क में जैसे मैंने कहा शुरू से, नथिंग इज़ वेस्ट। ये पिडंकल का भी कुछ ना कुछ बनता है, नथिंग इज़ वेस्ट हियर। यहाँ पर जो हमारे परचेजर्स आते हैं, मे बी फ्रॉम मालदा, बिहार, सॉरी कर्नाटका, वो लोग जो गंध शंध भी होता है वो भी ले जाते हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग इट। जैसे मैंने कहा, हमने डिफ्लॉसिंग करके उसको फेंक देते हैं, दे पिक इट अप, तो इसका भी यूज़ हो जाता है। एक जो हमारा ये डाबा टसर, वेरी हार्ड, ये वाइल्डेस्ट है, ये भी वाइल्ड है, लेकिन ये वाइल्ड बहुत ही हार्ड है। तो ये टसर का में भी दो टाइप ऑफ सिल्क बनते हैं। वन इज, ये है स्पन सिल्क, दैट इज आउट ऑफ द वेस्ट। जो मैंने कहा ये मोटा है, इससे जो फर्निशिंग्स, हमारे वेस्ट कोट्स, शर्टिंग्स वगैरह जो बनते हैं वो इससे भी बनते हैं। ये कंटिन्यूस भी होती है। ये होता है दैट इज़ अ सिल्क वेस्ट, मतलब मान लीजिए एक कोकून है, उसमें पियर्स हो गया है कीड़ा, उसको फिर आपको स्पन करना है बॉईल करने के बाद। कारपेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कारपेट के लिए यही यूज़ करते हैं, स्टेपल फाइबर। और ये है रियल सिल्क, व्हाट यू आर टेलिंग, ये टसर का है। ये मैंने जो सैंपल है, मेरे पास ज़्यादा सैंपल, इन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किया था, मैंने ये खुद वहाँ से मंगाया है। तो जस्ट शो यू, मैंने उनको यार जल्दी जल्दी डालो जो भी है, तो ये रील्ड है। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ सिल्क। तो आई थॉट दैट आपको, एंड वन मोर टाइप ऑफ जो है वो आप भूल रहे हैं, एरी, दिस इज एरी कोकून, एरी, इट इज कॉल्ड अहिंसा सिल्क, मतलब इसमें कीड़े को मारना नहीं पड़ता है, स्पन करके निकलते हैं। तो इसका क्या है, एरी का हम कारपेट्स भी बनाते हैं। एरी एंड वूल को हम मिक्स करते हैं, हम या एरी का हम वाप कर सकते हैं, वैक्स में हम वूल कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इट हैज़ गॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। ये प्रॉपर्टीज ऑफ वूल है इसमें, हाँ ठीक है। तो इसके साथ वो कंपेटेबल है, तो दैट्स वाई ये भी हमारे यहाँ पर ये पाई जाती है। तो अब इस 35,000 मेट्रिक टन्स जो हमारी प्रोडक्शन है, उसमें से आउट ऑफ दैट हमारा कितना, ये सारे जो बाकी जो वेराइटीज़ आते हैं, दे कम इन वानिया सिल्क, वो कितने मेट्रिक टन्स हैं? अराउंड, अगर हमारे को अभी 36 मेट्रिक टन है, क्या डॉक्टर साहब?
37, 35, 34.9. ठीक है 35। तो ये 8 से 9, 8 to 8.5 ये है पूरा गैमेट इसका। बट इसकी भी बहुत डिमांड है। इसमें टसर ज़्यादा है, बाकी का कम है। किसमें? इसमें बनिया में मेजॉरिटी टेकिंग बाय टसर इज हाँ yes. नो Number 1 is Mulberry, then followed नहीं ही इज टेलिंग एमक द 1 ईयर, बनिया एमक 1 ईयर। एरी ओके हाउ मच इट इज सर सो ही it is around 10%. I will take for tomorrow. Yeah. यस यस It is found to be spun silk only because it's not a continuous. It already comes out. There is a- out of it what we prepare the staple fiber spun silk. It is not reeled क्योंकि इसमें क्या कीड़ा पहले ही बाहर आ जाता है, तो इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना दिस मच में बी एनफ। तो कल हम बताएंगे, कल टुमारो विल सी द फिलामेंट लेंथ ऑफ दिस मलबरी। सर आप कोकोन फॉर्मेशन को अर्ली स्टेज में जो बता रहे थे कंट्रोल करने का, हाँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। वहाँ पर क्या कंट्रोल करना है, माउंटेजेस को आपको ध्यान रखना है। माउंटेजेस शुड बी वेरी वेरी प्रॉपर। अगर माउंटेजेस आपकी ठीक नहीं है, यस, जो जहाँ पर वो स्पिन जस्ट सिल्क बनाएगी, जो ये वाले होते हैं, जैसे कांचीपुरम हो गया, मैसूर का, अब ये किसका टेक्निक है? ये मलबेरी है। सारे मतलब यस, बट ये इट डिपेंड्स ऑन द वीव। जैसे हमारे यहाँ J&K में व्हाट इज J&K सिल्क फेमस फॉर? क्रेप, चिनॉन, ठीक है, शिफॉन। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ वीव। कांचीवरम का है क्या, वो डिज़ाइन आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो हाँ, इट्स अ ब्रांड नेम। सर वो मैसूर सिल्क का और वो मैसूर वाली बड़ी हल्की सी होती है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, इट डिपेंड्स ऑन द वीव। इट डिपेंड्स ऑन द कितना आपको डेंस। सपोज आपको जो एक प्रोसेस इसमें आपको बताऊंगा मैं, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। इस यार्न को आपको बाद में ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्ट से हमें क्या मालूम पड़ता है, इसको और हम हार्ड कर रहे हैं एंड स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अगर आपने एक व्हाट इज शिफॉन, शिफॉन जो साड़ी है, अगर आपकी चुन्नी भी होगी उसमें एक सैंडी इफेक्ट आ जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑफ उसमें कितना ट्विस्ट दिया गया है। तो आपका फैब्रिक जो वेट है पर मीटर कितना है, वो आपका जो पॉइंट है, तभी वो हल्की और ये होती है। जितना हाँ, यस, ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर वो शिफॉन है, अगर आप बंगाल से कोई वो तांतीवाड़ा वगैरह उधर है, वहाँ का आप ले लेंगे, उसमें उन्होंने बड़ा ही कोर्सर ट्विस्ट दिया होता है, लेकिन आपको वो एकदम पूरा जाली टाइप का लगेगा। दैट मे नॉट बी दैट कॉस्टली। मतलब इट डिपेंड्स कि किस टाइप का आपका व्यू है। स्पिनिंग का भी अगर उनको दिख रहा है कि सम डिफॉर्मेशन हुए हैं, तो ड्यूरिंग स्पिनिंग हम कुछ कर सकते हैं। आप अगर उसने नहीं बनाया है तो उसको आप उठा सकते हैं, बट बाद में उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बनना चाहिए। हाँ, बाद में वो आई एम टेलिंग, आप उसको कैसे उसमें से निकालेंगे, दैट मीन्स वो डिस्टर्ब हो जाए। बाद में हम कहते हैं कि उसको बिल्कुल वो कोई चीज़ ये नहीं होनी चाहिए, बड़ी शांति से उसको बनाना है। सो मतलब बस टू हमको रखना कहाँ है, अमाउंट इज दैट मैटर्स। हाँ, यस वो दैट इज द यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।